हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में यूनिट के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज़ मोशन। मोशन इज़ अ बॉडी इज़ इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. A body is said to be in motion when it changes its position with respect to the time. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी कब कहते हैं हम रेस्ट में है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. और एक बॉडी मोशन में कब होती है, जब वो अपनी पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है. तो ये था कुछ बातें रेस्ट एंड पोजीशन के बारे मोशन के बारे में. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन द एंशियंट टाइम ह्यूमन हैव डिवाइज्ड different means of transport of transfers from one place to another place. They designed a boat that resembled the shapes of the animals living in the water to travel across the water bodies, and they invented the wheel, which lead to the invention like carts and other animal driven mode of transport. Then during the beginning of the 19th century, human designed the steam engine, which was followed by automobiles and motorized vehicles. तो ये हमने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी. उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि मेजरिंग लेंथ की जो हिस्ट्री है वो क्या है. डिस्टेंस इज़ अ मेजर ऑफ हाउ फार और हाउ लॉन्ग समथिंग इज़. For example, the length of a table or a saucer field, or a how far is Mumbai from Delhi, or we can say from Guwahati to Kolkata, how far it is. So length can be measured in a terms of unit, and a unit is a comparison of an unknown quantity with that of a known quantity, which I discussed in previous class. It is required to establish a common standard or convention in order to make calculation and analysis easier. ठीक है. So traditional ways of measuring the length was the traditional method of measuring the length were the use of length one's foot or other body parts, but was inconsistent. Because why it is inconsistent? Because it varies from person to person and lacks uniformity. अगर मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए मैं अगर किसी के फुट की साइज़ को मैं मेजर कर रही हूँ, ये नॉन क्वांटिटी हो जाएगी, और मैं किसी के अननोन क्वांटिटी को मेजर करना चाहती हूँ, किसी दूसरे फुट को मैं मेजर करना चाहती हूँ कि उसकी लेंथ क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर्सन का फुट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल्स. सो क्योंकि सबका फुट क्या है, डिफरेंट साइज़ का है, तो इससे क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन हो पाती है. ठीक है, तो इस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट और वी कैन से स्टैंडर्डाइजिंग लेंथ मेजरमेंट बनाई गई. Scientists from all over the world have accepted a common standard of measurement, and the international system of unit, which we called it as SI unit, was set up so that the convention for measurement worldwide is used. Now we discussed about this one. A meter is a SI unit of length, and it has 100 equal division called as centimeter. To measure large quantities, we measure the distance in kilometers, and 1 kilometer equals to 1000 meter. Now I want to discuss here the zero error and the correct way to measure the length. So scale must be in contact with the object being measured. If scale are broken or the zero mark is not visible, it can lead to zero error. Now then the measuring from a different mark must be carried out. Here the correct reading will be obtained by subtracting the value from the full mark considered as the zero, and the measuring the eye must be exactly above the point where the measurement is to be taken in order to avoid the parallax value error. बेसिकली कहने का मतलब यही है, अगर आपको किसी भी वैल्यू की मेजरमेंट को डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेस द स्केल इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट. आप स्केल को रखोगे. इन सम स्केल द एंड मे बी ब्रोकन. आपका जो स्केल है वो एंड ब्रोकन नहीं होना चाहिए, उसके जो मार्क्स हैं वो क्लियरली दिखाई देने चाहिए. यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली.
इन सच केस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द ज़ीरो। तो सबसे पहले आपको ज़ीरो तो दिखाई नहीं देता, तो आपको एक अवॉइड करना चाहिए ज़ीरो से मार्किंग करने के लिए। बेटर है आप कोई और, यानी कि 1 सेंटीमीटर से आप उसको मेजर कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1 सेंटीमीटर। तो आप 1 सेंटीमीटर से मार्क कीजिए, आप 0 सेंटीमीटर से मार्क मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से एरर्स आ जाते हैं। देन यू मस्ट सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क। उसके बाद क्या करोगे, आपकी रीडिंग मान लीजिए 15 तक आती है, तो 15 को 1 से माइनस करेंगे, क्योंकि आप 1 से ले रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे 15 को 1 से माइनस करेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो इनिशियल वैल्यू को फाइनल वैल्यू से हमेशा सब्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द रीडिंग ऑफ द वन एंड इज़ 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक एंड पे 1 सेंटीमीटर है और दूसरे एंड पे कितना है 14.3, तो कितनी होगी लेंथ 14.3 माइनस 1, दैट इज़ 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट। तो आपके जो आईज़ हैं वो भी करेक्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, करेक्ट मेजरमेंट करेक्ट पोजीशन में होनी चाहिए, है ना, क्योंकि उसकी वजह से भी मेजरमेंट एरर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे ये स्केल है, तो यहाँ से ए की पोजीशन अलग है, बी की पोजीशन अलग है और सी की पोजीशन अलग है, तो इसकी वजह से भी हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी करती हैं। तो इस एक्टिविटी में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये एक्टिविटी अपने घर पर करनी है, ठीक है। एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है आपको, हु मेजर द हाइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइट को मेजर करना है, कौन मेजर करेगा। उसके बाद लिखना है हाइट इन हेड स्पैन, उसके बाद हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पहले हाथों से अपने हाइट मेजर करनी है और फिर उसके बाद आप हाइट को सेंटीमीटर्स में मेजर करोगे, ठीक है। तो ये आपको एक्टिविटी अपने घर पर करनी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग ऑफ अ लेंथ इन अ कर्व्ड लाइन। नाउ अगर कर्व्ड लाइन है तो हम कैसे मेजर करेंगे, यानी कि मान लीजिए अगर स्ट्रिंग है ना, तो हम स्ट्रिंग से कैसे मेजर करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कर्व्ड लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग मीटर स्केल। अ स्ट्रिंग और अ थ्रेड कैन बी यूज टू मेजर द curved line by creating a knot at one end and keeping that the beginning one can trace the curved line। तो पहले क्या करेंगे, आप नोट लगा देंगे, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड चीज़ से हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग से उसके ऊपर नोट लगा देंगे। देन दिस लेंथ कैन बी स्ट्रेच आउट एंड मेजर विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। अ मेजरिंग टेप कैन बी यूज टू फाइंड लेंथ ऑफ द कर्व्ड ऑब्जेक्ट। And for example, if you want to measure the height of the plant, if you want to measure the length of the snake, if you want to measure the girth of a tree trunk, तो आपको क्या करना होगा, आप सिंपली एक स्ट्रिंग को लेंगे और उसके ऊपर नोट्स लगा देंगे। नोट लगाने से हमें पता चल जाएगा 1 सेंटीमीटर पे आप अगर नोट्स लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर का वो उसकी थिकनेस है। तो ये था हमारा कर्व लाइन की कैसे हम मेजर करते हैं। नाउ मूविंग थिंग्स अराउंड अस। तो मूविंग थिंग्स अराउंड अस में मैं आपसे डिस्कस करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन। मोशन मैंने बताया आपको, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एज मोशन। तो मोशन जो है दो टाइप से होता है, एक तो स्ट्रेट लाइन और एक होता है सर्कुलर। इसमें हम पढ़ेंगे व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड एज रेक्टिलाइनर मोशन। तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वो क्या होता है, रेक्टिलाइनर मोशन होता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन फॉलिंग फ्रॉम द बिल्डिंग और अ स्प्रिंटर रनिंग अ 100 मीटर रेस, ठीक है। तो क्या है, वो एक तरीके का रेक्टिलाइनर मोशन है, क्योंकि वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर फॉलो हो रहा है। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल दिस फैन रिवॉल्विंग here, and also there are many example you can see in your real life situation. थर्ड है when an object moves to and fro from mean position or repeat the motion it is called as periodic motion. For example मान लीजिए आपके घर में क्लॉक है, क्लॉक की आपने घड़ियाँ देखी होंगी, वो कंटिन्यूसली
मूव करती रहती हैं और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती हैं. दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. जैसे मान लो पेंडुलम, पेंडुलम में नहीं सॉरी क्लॉक में आपका सर्कुलर मोशन है, बट कभी कभी आपने देखा होगा बड़ी जो क्लॉक्स होती हैं उनके नीचे कंटिन्यूसली एक चीज़ होती है पेंडुलम टाइप. तो वो पेंडुलम क्या होता है, वो कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो पोजीशन में मूव करता रहता है, तो उसको मैं बोलूँगी पीरियोडिक मोशन. बट जो क्लॉक की जो निडल्स हैं उनको मैं बोलूँगी सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो पीरियोडिक मोशन क्या हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम मीन पोजीशन it repeats the motion, it is called as periodic motion. For example, pendulum and a race car taking laps of a circuit. तो ये सब, ये देखिए ये क्लॉक दिख रहा है आपको, इसकी जो निडल्स हैं वो तो सर्कुलर मोशन में है, बट जो इसके जो नीचे वाला पार्ट है पेंडुलम टाइप, ये क्या है आपका पीरियोडिक मोशन. ठीक है, तो ये था हमारा कुछ मोशन के बारे में थोड़ा सा. तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं टाइम के बारे में. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम. टाइम इज़ अ यूनिट दैट मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डू एनीथिंग एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो हम डिस्टेंस हमेशा जब भी मेजर करते हैं तो उसको किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं. तभी मैंने बोला आपको मोशन क्या होता है. मोशन इज़ अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टाइम with respect distance travel with respect to the time. तो मोशन क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो टाइम क्या है, टाइम इज़ अ यूनिट दैट मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डू एनीथिंग. मान लीजिए मुझे यहाँ से स्कूल जाना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो टाइम क्या हुआ है, एक यूनिट हुई जिससे मैं मेजर कर सकती हूँ किसी भी काम को कितने टाइम में मैंने कितना ज़्यादा कितना कम टाइम मुझे लगा कंप्लीट करने में. तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज़ मेजर विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. कोई भी डिस्टेंस मैं मेजर करूँगी तो विद रेस्पेक्ट टू द टाइम करूँगी. ठीक है, तो स्पीड क्या हुई हमारी, स्पीड हमारी होती है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद द स्पीड एस फॉर द टाइम इंटरवल टी, देन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, अभी नहीं है आपके 7th क्लास में आपको आएगा. तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी इसके. ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो क्वेश्चंस ज़्यादा करने चाहिए हमको. ठीक है, रादर देन के थ्योरेटिकल पार्ट तो है ही है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनल चैट में. ठीक है, बट आपको ये क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाऊंगी, उससे चीज़ें और क्लियर होंगी. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.